Okay, so hello everyone. This is Dr. Anam Zahir, and today, as promised, 27 June, 12 noon, we are here for episode 20 of our Instagram live guest talk with Homeopathy Heals. I've got a lot of DMs about मैम BHMS के बाद ये कर सकते हैं क्या, BHMS के बाद ये कर सकते हैं क्या, MD करें, प्रैक्टिस करें, 3 साल MD में दें, 3 साल प्रैक्टिस में दें. मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आए कि मैम नीट के स्टूडेंट्स के मैम होम्योपैथी करेंगे तो ब्रेड बटर कमा सकते हैं क्या, क्या स्कोप है, हाउ मच BHMS स्टूडेंट या पास आउट अर्न्स, या इंटर्नशिप में हमारे क्या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, होम योर वेलबींग. ओके, सो इतने सारे क्वेश्चंस, तो सोचा लेट्स हैव अ guest talk, and the speaker for today is very special. Why he is special? Because when we started guest talk with Homeopathy Heals, he was the first guest of episode 1. He is none other than Dr. S.K. Mishra, and I must say he's a very lucky charm for me, because when I started my new clinic, he was always there to check for all the legal formalities, that we should not miss somewhere anything. So he's a very wise man and always ready to help the students. Let's add him, and then I'll introduce you. Those who don't know him, he'll be here any minute. I hope you have subscribed our YouTube channel and have liked our Facebook page as well. Good morning, Oh, boss. good morning, good morning. Can you hear me? Yes, loud and Good, clear. good, good. So I was telling everybody that Okay. we started Instagram live, and you were the guest for the episode 1. Yeah, I And was the I'm first so one. glad, we are so blessed. Yeah, in the episode 1, we discussed about the legal issues to Yeah. start clinic and the medical legal aspect to protect doctors, especially homeopaths, from Yes, yes. anything. And this episode will be talking about the future, the scope after BHMS. So those who know Dr. Mishra will be loving him. Those who don't, I would like to love to introduce him. He is associate professor in Department of Forensic Medicine and Toxicology at reputed NHMC under Government of India. He has organized various seminars in different topics in all university and forums, and has been invited as guest speaker as different panels and different esteemed institutions. He has written lot many articles and published by many reputed journals like National Journal of Homeopathy, Homeopathic Heritage, Forensic Chemistry and Toxicology. He is the head of department. He's the head of the department in so many. He's being a panelist and in the board of homeopathic system of medicine to look into the matter in connection of clinical establishment. A draft has been prepared for the same to send the views from board of homeopathic system of medicine as desired notification by ministry in public notice. He is also a panelist in Kent Memorial Lecture 2020 organized by SDHA. He is a subject expert in various Public Service Commission of State as well. He's been invited as an expert on Lok Sabha TV on COVID discussion by many times and other news channels like Delhi and other states. He is recently being awarded as Delhi State Mission for work done in field of Kaya Kalp program at NHMC as a nodal officer, where institute got recommendation award of 3 lakh in Pradhan Mantri Swachh Abhiyan. He is a present project coordinator at Efficacy of Homeopathic Medicine and Lifestyle Disorder on every Monday in OPD. He's very enthusiastic. If I talk about his extracurricular activity, he's a freak, fitness freak and Zumba lover. And he has also a channel named as Shiv Zumbian. So if you want to see his dance, you can definitely follow the account and can see. He's a very good table tennis player, and he loves to talk and share the views. As I told, he's always ready for the students to help, be it medical legal. I'll tell you one thing before I bump in. I hope you remember last year, one patient was behind me that my thyroid is not uh, coming down, and Yes, I will yes. do this, I will do this. So here comes the Dr. Mishra as my savior. He told me to tell the name of the medicine and ask him to take medicine from where he wants to, and he makes the case very simple. So there is a lot of need for a homeopath to know their rights
know their duties, their medical legal issues as well. Yes. So the present topic is for students for their career counseling, so they can understand their strengths and they can choose their path accordingly. A very warm welcome to you, sir. थैंक यू वेरी मच अनम. थैंक यू डॉक्टर अनम. हम लोग एक ही कॉलेज के पास आउट हैं और जो है हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ही परिवार के सदस्य हैं. So first of all, I would like to dedicate this program to my colleague Dr. S.K. Pandey, who just passed away due to COVID, and I am still very shocked. He was a legend person, and he was master of materia medica, repertory, and all known subjects. So this program is especially dedicated to Dr. S.K. Pandey sir and those students who lost their loved ones, parents, so that we can help them by any manner by this interview. So one or two line I will just sing. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. So with these notes, let's begin this session. So I want to introduce something about homeopathy. I think होम्योपैथी के बारे में सब लोग जानते हैं, इसकी हिस्ट्री कब आई, कैसे हुई, वो सब चीजें तो आप सबको पता ही है. बट कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं होम्योपैथी के बारे में, जो हमारे बच्चे इवन जो स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएचएमएस में आते हैं उनको थोड़ा कम पता होता है इसके बारे में. जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले होते हैं उनको तो थोड़ा सा नॉलेज होती है. बट ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आई जस्ट वांट टू शेयर. एंड आई डिड सम R&D इन दिस एंड आई आल्सो especially mention here Dr. Mansoor Ali sir. He is the professor in Government Homeopathic Medical College, Calicut. So he is a very learned person, and he has his own YouTube channels and own websites, which is known as homeobook.com. If everybody is listening me, so please subscribe that homeobook.com also, because you can get the latest information related to jobs, related to the all PG, UG things. So I took some interesting facts from there because I have to mention where from I have taken this. So according to WHO, homeopathy is one of the most popular stream in the world, used by the 600 million people and practiced around the 66 countries. Next thing, in India, 100 million people are using this homeopathy. And almost 2 lakhs practitioners of homeopathy is there in India. And every year there is amount of 12,000 as a lump sum BHMS students become doctor in India. इसके अलावा जो है, जो सबसे ज्यादा होम्योपैथिक प्रोडक्ट यूज करने वाला कंट्री, उसका नाम पता है आपको? वो है फ्रांस. फ्रांस. So France is the biggest global homeopathic consumer of homeopathic products, where in 2008 in some magazine, I forgot the name of that magazine, Australia spent $7.3 million on homeopathic products, whereas France spent $408 million. Can you believe $408 million on homeopathic products? So just हम कहते हैं ना कि कूप मंडूक है, हम लोग कुएं के मेढक हैं, तो सिर्फ पर आग बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको देख करके खुशी होती है. इसी तरीके से आउट ऑफ 40 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट इज प्रैक्टिस्ड इन 39 कंट्रीज. होम्योपैथिक इज प्रैक्टिस्ड इन 39 कंट्रीज, but legally 25 out of 39. Legally it means that they have added some clause that only MBBS can practice homeopathy likewise. So out of these 39, 25 are the legally, rest of all they can practice, homeopath can practice in the rest 14 countries. So another interesting fact, there is an article published by ICMR, the well-known institute, where it was found that among all the systems of medicine in Ayush, homeopathy is the most used system of medicine after allopathy. They have data, and around 5,000 patients per doctor in India in homeopathy.
उनके यहाँ तो फिर भी 2100 1200 है, हमारे यहाँ बहुत कमी है डॉक्टर्स की। सो हमें और डॉक्टर्स चाहिए होम्योपैथी के लिए। तो यहाँ भागना नहीं है बीएचएमएस करने के बाद से। यहाँ तो आपको बहुत पेशेंट हैं, आपके पास, उनके पास डॉक्टर ही नहीं है भाई। तो आपको हमको इस लायक बनना है, इतना वेल इक्विप्ड बन जाना है कि हमें जो है किसी को देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये थोड़ा सा एक मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो मैंने थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा पता लगे इस चीज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। श्योर। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, अपने अपने जितने लोगों ने मैंने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने वो नोट कर लिए हैं, और अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालें, बिकॉज सर इज ऑलवेज विलिंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट आज तक मैंने सर के यहाँ से मायूस होकर जाता हुआ नहीं देखा है। तो विल बिगिन। सर आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया एक्चुअली, बिकॉज यू बीन इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन and that too in New Delhi. What do you think is the status of homeopathy in India? Status of homeopathy in India is very good now, right now, because earlier it was not so good, but right now their vacancies are creating to the NRHM, NUHM. So, and there are, I think, more than 200 medical colleges are there. So, but in India, the government colleges are less and private colleges are more. But still, homeopathy is improving in India, and patient data especially is very much improving in India. So currently India is very good country for homeopathy. Okay. सर मुझे ये बताइए, जब हम लोग BHMS करते हैं और हर साल हजारों बच्चे पास आउट होते हैं, महाराष्ट्र में तो वी हैव 25 MD के कॉलेजेस और शायद 40 से भी ऊपर BHMS के कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस। तो हर साल हजारों की तादाद में बच्चे पास आउट होते हैं। तो जब हम BHMS कर रहे होते हैं तो हमें तब कोई टारगेट सेट करना चाहिए पढ़ाई के लिए, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मेरे को तो ये लगता है कि स्टूडेंट लाइफ से ही, जो भी स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जैसे बॉडी की यूनिट एक सेल है, इसी तरीके से होम्योपैथिक कॉलेज की एक यूनिट एक स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट नहीं सही होगा तो कॉलेज सही नहीं होगा, कॉलेज सही नहीं होगा तो फिर वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन गड़बड़ हो जाएगा। एक यूनिट हमारा जब तक सही नहीं होगा, इसलिए उससे हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा जो सोचना है कि हर होम्योपैथिक स्टूडेंट का एक ड्रीम है कि उसको डॉक्टर बनना है। बहुत अच्छी बात है, ड्रीम देखिए। ड्रीम जब हम देखते हैं तभी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन साथ साथ हमें रियल वर्ल्ड में भी रहना है। ड्रीम के साथ साथ हमें लेबर भी करना है। तो हमको ये सोचना है कि हम कितने सीरियस हैं BHMS करते समय, हाउ यू आर सीरियस टू डू। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप लेना सीखो। जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में ही हो तो एनाटॉमी सही से पढ़ो, फिजियोलॉजी सही से पढ़ो, या ये चीजें। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट जो है मैटर नहीं करते, सारे सब्जेक्ट मैटर करते हैं। आपको ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीज ये है कि आपने को एसेस करो। जैसे आप नीट देकर के आए, आप कुछ न कुछ एग्जाम देकर के आए, तो आपके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज होंगी, उनको भी आप एसेस कीजिए। केवल पढ़ाकू कीड़ा मत बनिए। अगर आपके अंदर अच्छा आप ओरेटर हो या अच्छे तरीके से आप अच्छा मैनेज करते हो, तो आप अपने इन 4 सालों 5 सालों के दौरान अपने अंदर की स्किल को पहचानने की कोशिश करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस तरफ जा रहे हो या जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो है सिर्फ BHMS करके आपका रास्ता बंद हो गया। तो आप पहले अपने को पहचानो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब हम UPSC देना चाहते हैं। UPSC नॉट फॉर मेडिकल ऑफिसर, UPSC फॉर सिविल सर्वेंट, जो कि IAS IPS बनते हैं लोग आगे जाके। हमारे यहाँ की भी 3-4 एलिमनी IAS और IPS है नेहरू होम्योपैथी की। तो दे कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड दे टुक देयर वे। तो उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन मेरा एक सजेशन इन स्टूडेंट्स को है कि यू हैव टू गेन मोर क्लिनिकल नॉलेज और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, उसमें ज्यादा आप जाओ, रादर देन टू ज्वाइन एनी सिंपोजियम और सेमिनार बिफोर कंप्लीटिंग योर BHMS। प्रॉब्लम क्या है कि 2nd-3rd ईयर से ही बच्चे, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं और मैं किसी को गलत नहीं मानता, सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपना अपना सही कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बिना फाइनल ईयर या बिना इंटर्नशिप किए, बिना हैनीमेनियन फिलॉसफी को समझे हुए आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। और 2nd ईयर 3rd ईयर से ही आप सोचने लगते हो कि मैं रूब्रिक बना रहा हूं, मैं पेशेंट देख रहा हूं, तो जितना हम लोग प्रिजुडिस बोलते हैं उतने ही ज्यादा प्रिजुडिस हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, ये एक तरीके का समझो कि वार्निंग भी है कि स्टैट्यूटरी की, भाई आप पहले अपने जो सब्जेक्ट्स हैं बेबी स्टेप लेते हुए उनको कंप्लीट कीजिए। सबकी इंपॉर्टेंस है, सब प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो ये मेरा स्टूडेंट्स के लिए सुझाव है कि जो है
और कोई भी स्कूल ऑफ फिलोसफी खराब नहीं है। जब आप कर लो, आप देखो कि आपका किस तरफ झुकाव है, आप उसको ज्वाइन करो। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो ये बताइए सर कि हम स्टूडेंट्स को, बीएचएमएस जो इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या फैंटेसी रखनी चाहिए करियर के लिए आगे? हमारे हाँ मन में क्या विचार होना चाहिए इंटर्नशिप हाँ के दौरान या थर्ड ईयर फाइनल ईयर के दौरान? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि फैंटेसी आप रखिए, लेकिन सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है आपको। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। हम लोग बड़े साइकोलॉजिकल सेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, काउंसलिंग पढ़ते हैं कि राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन डायरी। वो डायरी फेंक देते हैं उठा करके। तो एक्चुअली वो सही चीज है। आपको ये देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में वीक हो। वीक में अगर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो आप कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो अलग बात है। दूसरी चीज है आपको देखना आपकी फैमिली की सिचुएशन क्या है, फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ये भी एक बहुत, कोविड के समय में एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता खोए, बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमें पहले ये सोचना है कि हम कैसे अपनी ब्रेड बटर अर्न करें, कैसे हम कुछ रोटी खाएं, तब तो हम भाई आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। अभी तो जीवन की बेसिक नेसेसिटीज की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपकी अपनी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है उसको आप देख लीजिए। इसके अलावा मतलब अपने को पीछे नहीं हटना है मेहनत करने से। मेहनत करेंगे, आप जो भी फैंटेसी रखेंगे उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। बट ये 2-3 चीजें आप अपने ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टारगेट पे की ओर बढ़ो। बिल्कुल सर। हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स एक तरफ, और इंटर्नशिप में आते ही ऐसे चेंजेस आते हैं जैसे प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, सब चीज चेंज हो जाती है उन 6 महीनों में। तो मुझे ये जानना था कि व्हाट शुड बी आवर माइंड सेट ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो इंटर्न्स के लिए कुछ बताइए, उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज सबसे ज्यादा होम्योपैथी में इंटर्न्स ही रहते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो आधा तीतर आधा बटेर वाली स्टेज पे होते हैं। वो जो है ना, तो वो बहुत सही आप सवाल पूछ रहे हैं, और हम लोग भी थे। ऐसा नहीं कि वो लोग अकेले हैं, सारे लोग होते हैं। तो मेरा ये कहना होता है कि इंटर्नशिप एक ऐसा समय है जहाँ पे आप बहुत एंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, क्योंकि आपके ऊपर से एक एग्जाम का बर्डन हट जाता है कि जी पढ़ना है, पास होना है। लेकिन साथ साथ एक आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है पेशेंट देखने की, और आप समझो कि 1 साल बाद आप बेरोजगार हो जाते हो। इस तरीके से कहा जाता है कि आप सड़क पे आ गए, इस तरीके से माना जाता है। तो ये दोनों बातें कि आपको एंजॉयमेंट भी अपनी लाइफ का करना है, साथ साथ आपको उसके लिए सीरियस भी होना है। और ये जो है, जो मैंने आपको स्टेप बताया बेबी स्टेप, ये आप अगर 1, 2, 3, 4 साल में करोगे तो इंटर्नशिप तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा मटेरियल हो, किस टाइप के आप पर्सनालिटी हो। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 4 तरीके की पर्सनालिटी इंटर्नशिप के दौरान देखी है। एक तो वो कि जो बहुत सीरियस होते हैं और लेबोरियस होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कई इंटर्न 3-3, 4-4 घंटे तक अपनी सीट से उठते नहीं है, भले पेशेंट ओपीडी में हो या ना हो। वो पढ़ते हैं, वो सीरियस रहते हैं। तो प्रैक्टिस मटेरियल है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको चिपक के बैठना बहुत जरूरी है सीट से। क्योंकि आपकी जब क्लिनिक खुलेगी तो खुलते पेशेंट की भरमार तो लगेगी नहीं, तो यू हैव टू स्टिक विद योर चेयर। तो उस तरीके के धीर गंभीर और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं, दे आर प्रैक्टिस मटेरियल। तो अब बच्चे अपने को खुद को कैटेगराइज कर लें कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। ये एआई पीजीटी की तैयारी कैसे करें, फलाने कैसे करें, ये सब बहुत बात की चीज है। पहले आप अपने को ये देखो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। दूसरी चीज है कि कुछ आते हैं जो केवल डिग्री के लिए आते हैं। भाई आपको डिग्री लेना है तो वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। जैसे डिग्री लेके मुझे यूपीएससी करना है, डिग्री लेके मुझे फिर ये करना है, वो करना है, तो वो उनका भी क्लियर है कि वो क्या करना है। तो उनको तो पास होने से मतलब है, डिग्री लेने से मतलब है। तो आप इस कैटेगरी के हो। तीसरी चीज है कि दे आर नॉट गुड इन स्टडी बट दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। वो क्या करेंगे, जैसे इंटर्न्स का ग्रुप होगा, उनको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, उनको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्किल है। वो ओपीडी रूम में 1 मिनट भी नहीं बैठेंगे। मैं कहीं देखता हूँ, कई बच्चे बस चक्कर काटते रहते हैं, हर कमरे में झांकते रहते हैं और बस 5-5 मिनट के लिए बैठते हैं। तो बट देर, मतलब लास्ट ईयर कई बच्चे मेरे पास ऐसे आए, तो मैं उनको बोल देता था, बेटा तू ऐसा कर, तू फलानी फील्ड में चला जा, तेरे को वहां सक्सेस मिलेगी, क्योंकि तेरा ट्रेट ही है, तू प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना हुआ। तो आप अपना उस हिसाब से उस तरीके से कीजिए। और चौथी कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मिलती है वो है कंफ्यूज।
कंफ्यूज कैटेगरी सबसे ज्यादा है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि मैंने आपको जो बताया ना, वो हम 4 सालों में जो टाइम नहीं अपना स्पेंड कर रहे हैं अपने ऊपर, इस वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक को देख के एक पीजी की तैयारी कर रहा है, दूसरा भी पीजी की तैयारी कर रहा है, तीसरा भी पीजी की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहे हो? तो जी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। एक हास्यास्पद बात ये रही, मतलब एक दिन क्या हुआ कि एक मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का फोन आया कि सर आप कुछ बच्चे भेजिए पीजी की तैयारी करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं भेज दूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो पीजी करने के बाद? तो बोले सर मैं पीजी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा वो क्या करेंगे पीजी करने के बाद? पीजी की तैयारी करवाएंगे। तो पीजी करने के बाद क्या करें, उसको भी तो सोचना है ना। पीजी करने के बाद आगे क्या करना है, ये भी तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना। केवल सबको देख के आप पीजी कर रहे हो, वो चीज सही नहीं है। आपका माइंडसेट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, कि पीजी करनी है, ये जो भी चीजें हैं, आपका माइंडसेट खुद का होना चाहिए, दूसरों को देख के नहीं। स्कोप हर चीज में है, बट पहले आप क्या करना चाह रहे हैं, इस कंफ्यूजन के लिए है कि जस्ट सिट, टेक योर टाइम, spend 1 to 2 months about what do you want to do, then you decide what to do. You consult your friends, your parents, सबसे बात करो, जो जिस जिस फील्ड में है उनसे बात करो। किसी भी फील्ड में पका पकाया नहीं मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट में। मेहनत आपको हर जगह करनी है। आप कंफ्यूज हो तो आप अपने को यहाँ पे क्लियर कर लो कि आप कोई स्किल्ड रखते हो, कोई अच्छा सा मैनेजमेंट का आपके अंदर स्किल है, तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो 1 साल का, तो कर लो अगर टाइम है आपके पास हो। अगर आप स्किल और किसी तरीके के रखते हो तो आप उसमें जाओ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में जाएं। इंटर्नशिप के लिए तो मेरा यही फॉर्मूला है, और जो बच्चे मेरे साथ बैठते हैं ओपीडी में, मैं उनको हमेशा यही कहता हूं कि भाई तुम ये देखो कि तुम कौन से कैटेगरी में आ। एक पांचवे तरह के भी बच्चे रह गए। हाँ हाँ हाँ, कौन से बता दूं? हाँ बताओ बताओ। सर वो बच्चे जो डॉक्टर इसलिए बनते हैं ताकि अच्छी लड़की मिल जाए डॉक्टर शादी करने के लिए, या अच्छा। वो लड़कियां जिन्हें कोई अच्छा बिजनेस टाइकून मिल जाए, डॉक्टर हो जाएंगे तो अच्छी शादी हो जाएगी। आप कैसे भूल सकते हैं ऐसे? नहीं तो वो कैटेगरी वही होगी ना, जस्ट फॉर, वो वही कैटेगरी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिग्री। वो उनका एम वही है। मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा था, पर वो ओनली फॉर डिग्री वाली कैटेगरी है, क्योंकि डिग्री लेके सही मैट्रिमोनियल प्रोफाइल अच्छी करनी है। लिटरली मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कलीग्स यही बोलते थे कि उनको एक अच्छी लड़की चाहिए, इसीलिए वो डॉक्टर बन रहे हैं। और मैंने लड़कियों को भी सुना है कि अच्छी शादी होगी अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे तो। हाँ, तो है बट लोगों का हमारे यहाँ mindset मैं यही एक है। आध बार किसी को बोला तो बड़ा बुरा लग गया बच्चों को, तो मैंने कहा भाई इस शब्द को आप मतलब अब हो सकता है कि हर्ट हो गए हो, वो मैंने गलत बंदे से पूछ लिया हो। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, बट मतलब फिर भी ठीक है, आपकी अपनी सोच है। आप जो भी सोच रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं, आप स्वतंत्र हो सोचने के लिए। लेकिन आप एक डिग्री, एक सीट को बर्बाद कर रहे हो, वो चीज समझनी चाहिए कि जिस चीज के लिए। सर मैं आपको बात बताता हूँ, मैं बताती हूँ। मैं अभी अपने हमारे कॉलेज गई थी मुरादाबाद, 2 साल पहले की बात है। तो बहुत सारे बच्चों ने आके मुझे घेर लिया, अरे मैम, मैं शायद पीजी के फाइनल ईयर में होंगी। अरे मैम कैसे करें, क्या करें, लड़कियां मैम प्रैक्टिस शुरू करें, मैम पीजी करें। मैंने कहा ऐसा करो, शादी कर लो। तुम अभी यहाँ हो, तुम प्रैक्टिस शुरू करोगे, 3 साल के बाद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करके दूसरी सिटी भेज देंगे, और फिर वहां पर तुम फिर 3 साल लगाओगे प्रैक्टिस के लिए। तो वहां तो बहुत जोक सा हो गया। पर लिटरली कुछ लोगों ने जब इस पर विचार किया तो उन्हें लगा कि वाकई इंडियन कम्युनिटी के लिए, इंडियन कल्चर के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात को मानती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि मैं शादी को प्रमोट कर रही हूँ या मैं नॉन एम्बिशियस हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सेटल हो जाएगा ना। आप एक चीज देखो ना, मैं तो कह रही हूँ आप उदयपुर के राजघराने के भी हो, पर आपके पेरेंट्स आपकी शादी नहीं करेंगे इंडियन कम्युनिटी में, मैं मान नहीं सकती। अरे मैं बच्चों को कई बार ऐसा बोलता हूँ कि मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप ऐसा करा करो, क्या तो किसी के अंडर में बैठ जाओ जब इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी से सीख लो। क्योंकि आप लड़के लड़की में मतभेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका क्या है, आप 2 लाख 3 लाख का एक्सपेंडिचर करके क्लिनिक खोलोगे, फिर आपके अगर इन लॉज कहीं और रहते हैं, आप कहीं और चले गए, तो सारा बंटाधार हो जाएगा। तो आप जहां शादी करो, मैं भी ये कहता हूँ वहीं आप अपनी क्लिनिक एस्टेब्लिश करो। प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। हाँ। ये बुरा मानने की कोई बात ना नहीं ना ना, इसमें बिल्कुल बिल्कुल ये मेजॉरिटी है, ये इंडियन कम्युनिटी है। ये बिल्कुल ये बहुत ही सही आपने और हमें, और when in Rome be like Romans, आप इंडिया में रहते हैं तो इन चीजों को आपको फेस करना ही है, आप इसे बच नहीं सकते ना। तो इसमें शायद मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं शादी का जिक्र नहीं करते,
and some girls are happily unmarried at 30, 35, 40. That is so good, but that is not majority. That's their personal choice. That's their personal choice. लेकिन that is not majority. No, that's not ऐसा नहीं majority. कर सकते। इस पॉइंट को ना ध्यान में रखना हाँ हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। तो इसमें एक तो चीज हो गई थी इंटरेस्ट की, 2-3 पॉइंट पे इंटर्न को विचार करना है। एक तो हो गया इंटरेस्ट की, मेरा इंटरेस्ट किस में जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट से मैंने कैटेगराइज कर दिया, जो लेबोरियस होगा, ये होगा, वो ऐसे जा सकता है किस तरीके से। दूसरी चीज, केवल इंटरेस्ट से पता नहीं लगेगा, इंटरेस्ट के साथ साथ अब मुझे अगर पायलट बनना है तो पायलट बनने की ट्रेनिंग भी तो लेनी है, कि इंटरेस्ट केवल होने से हो जाएगा। तो इसका अब अगला चरण है स्किल। आप स्किल आपको है कि नहीं है उसकी, जो भी आप करना चाह रहे हो स्किल्ड हो कि नहीं हो। जैसे आप मैनेजर बनना चाहते हो कि गुड टॉकिंग स्किल है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है आपके अंदर, ये भी देख लो ना। इंटरेस्ट वो रिलीवेंट होना चाहिए ना। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इररिलेवेंट बात करो। तो स्किल टू डील विद पेशेंट्स, स्किल टू टेक केस, स्किल टू गिविंग मेडिसिन और सेलेक्ट मिनिमम, और स्किल टू मैनेज क्रिटिकल सिचुएशंस। क्रिटिकल सिचुएशंस का मतलब क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं भाई, एक कभी कभी हमारे यहाँ आ जाते हैं पेशेंट, चढ़ जाते हैं, कोई इंटर्न बहुत अच्छे से उसको समझा के ले जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन है। तो बिल्कुल, तो आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल। तीसरी चीज मैं कहता हूं, आप अपने फाइनेंशियल बैकिंग पे ध्यान दो। जैसे कि अभी आपने बोला भाई, अब आपके फाइनेंशियल बैकिंग ऐसी है कि आप वेल टू डू हैं, परिवार आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, और आप प्राइवेट प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। आप प्राइवेट प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दो। इवन आप पीजी करके प्राइवेट प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैमिली कंस्ट्रेंट्स तो रहेंगे ना, आप उससे तो अलग नहीं जा सकते। दूसरा है कि जो एवरेज इनकम वाले हैं या एवरेज फैमिली इनकी स्टेटस है, वो जॉब के साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अपना 8 to 2 या 9 to 4 की जॉब है, शाम को प्रैक्टिस कर लिया, उस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरे वो हो गए जो कि मैंने अभी कोविड सिचुएशन बताई, या कोविड से पहले की भी, जो कि बड़े अथक प्रयास से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं कि सर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, आने के पैसे नहीं है, जो भी दिक्कत है। तो उनके लिए तो सिर्फ यही है कि भाई जो मैं ऑप्शन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उनमें से कोई एक चुनो और फटाफट जो है जॉब पकड़ो, और सबसे पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज को संभालो, उसको करो। सर आप मानेंगे नहीं, आप ऐसे गेस्ट स्पीकर्स में से हैं जिन्होंने हमें रियलिटी चेक किया है सोशल मीडिया पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे 200-600 लोग लाइव देखते हैं, और उसके बाद 2-2.5 हजार लोग बाद में ऑफलाइन देखते हैं। वहाँ इतनी बड़ी रियलिटी की बात कहना बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि हम लोग फेस नहीं करना चाहते। नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोगों का दर्द नहीं समझ सकते। हाँ, और क्या है ना कि हम रियलिटी बताते हैं ताकि, मतलब क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कई जगह ऐसा ऑर्नामेंटल हिसाब किताब होता है, बोलो कुछ करो कुछ, ठीक है, सिंगल मेडिसिन गाते रहो और 4-4 मेडिसिन अपने क्लिनिक पे बैठ के दो। तो वो चीज जो है मेरे से नहीं हो पाती है। मैं अपने को कमजोर मानता हूं, अगर मैं कहीं 2 मेडिसिन दे रहा हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं सिंगल दे पाया, पर मैं अपने बच्चों को ही बोलूंगा भाई मैंने ये 2 दिए। मैं नहीं बोलता कि मैंने जो है सिंगल मेडिसिन मास्टर हूं, क्योंकि उसके लिए आपके लिए बहुत विद्वान होना पड़ेगा। हर केस में आप सिंगल मेडिसिन नहीं दे सकते। आप करें कुछ और कहें कुछ बच्चों को, ये सबसे बड़ा धोखा है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जिनका नहीं है ना, वो जा करके अपना, और इसको ईगो प्रॉब्लम ही बनाना है। एक प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ कि भाई मेरा सीनियर ने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, भाई फलाना कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फलाने की बैकिंग देखो, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट देखो, उसकी पढ़ाई लिखाई देखो, सब चीज देखो। हर इंडिविजुअल अपने में अलग है, उसके टर्म्स कंडीशंस अलग हैं। तो आपको अपने हिसाब से पहले से ही समझदारी से, जैसे मैंने कहा कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही सोच लेना है। ये तो सबको पता है कि सबका बैकग्राउंड क्या है, सबके स्किल क्या है, तो उस हिसाब से आपको अपने टैकल कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप किसी भी सिचुएशन में रह सकते हो। ऐसे भी लोग हैं हमारी दुनिया में, भाई लाल बहादुर शास्त्री हो गए, अब ये हमारे अब्दुल कलाम आजाद हो गए, या जितने भी लोग हैं, तो इस तरीके के लोग हैं। अगली चीज है इंटरेस्ट हो गया, स्किल हो गई, है ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गए। अगली चीज है मोटिवेशन। आप किससे मोटिवेट होते हो? अपने फादर से होते हो, अपने मदर से होते हो, पेरेंट्स से होते हो, फैमिली मेंबर से हो, फ्रेंड्स से हो, अपने सीनियर्स से हो, टीचर्स से हो। कौन है आपका आइडियल? जो आपका आइडियल, उससे आप जाके बात करो। उसके जैसा आप बनना चाहते हो तो कुछ जरूर उसकी खूबियां आप समझते होगे, जानते होगे, तो आप उसके पास जाओ, उनसे बात करो। तो इस तरीके से इफ दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन दे मस्ट
be skilled and then they can follow their passion after taking motivation from their ideals. Then I think they will reach at the correct point. ये 3-4 चीजों को मिला करके इंटर्नशिप में वो सही दिशा में चले जाएंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हम बीएचएमएस के बाद क्या क्या कर सकते हैं? हाँ। और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। यही तो हमारा आज का वैसे मुख्य विषय है। अभी तक तो हम लोग भटक रहे थे। तो मैंने जैसे कहा कि आपको कि इंटरेस्ट जो है आपका सबसे पहला है कि पीजी करना है। वैसे अमूमन जो है जनरली 2 ऑप्शंस आते हैं कि आप बीएचएमएस करने के बाद पीजी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाओ, है ना। तो पीजी आप करना चाहते हो करो, अच्छे कॉलेज से करो, वेल इक्विप्ड होके निकलो। ऐसा ना हो कि बीएचएमएस वाला भी भूल गए पीजी करके। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल आप डिग्री के लिए एमडी लेकर के, एमडी करना बेकार है। तो इसीलिए आप सिर्फ ये सोच के करो कि पीजी करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। तो इसलिए आपको पीजी करना है तो वो आप अगर थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग है आपका, बहुत सीरियस हो स्टडी में और अच्छा सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो और टीचर बनना चाहते हो बेसिकली, क्योंकि आज की डेट में तो टीचर के लिए पीजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कंपलसरी है। तो आप इस फील्ड में आपका स्वागत है, आप जरूर पीजी कीजिए। अन्यथा 3 साल के प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी आप पीजी वालों से ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आप सबको पीजी करनी है, और मैं कभी पीजी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं पीजी। तो ये जो है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या चीज है कि बीएचएमएस के बाद पहले बात तो हो गई पीजी। पीजी भी हम 2 तरीके से कर सकते। अभी ना एक पॉइंट जो है ना, इस पे एक इंस्टा लाइव हो सकता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा डेप्थ में है कि इस पे एक इंस्टा लाइव का टॉपिक हो सकता है। तो जैसे पीजी करें, पीजी हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कि प्राइवेट से करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। अब जैसे आपने आपने क्रैक किया, आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जो है वो चुना, बट जनरली प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की रैंक हाई होती है, प्राइवेट की लो होती है। तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको प्राप्त होगा। तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन लो, पीजी करो। और उसके अलावा आपको फिर पीजी करने के बाद 2 ही रास्ते हैं, या तो टीचिंग करोगे, प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओगे, या रिसर्च ऑफिसर, या जितने भी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे पीजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वहां आपके लिए जॉब प्रोस्पेक्टिव है ना। दूसरा चीज है प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या है कि आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हो। दूसरा, आपकी बहुत अच्छी चल गई, किस्मत भी अच्छी है, आपके हाथ भी अच्छा है, आप चेन खोल लो, ठीक है ना, चेन्स खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, चेन्स भी खुली हुई है। उसके अलावा आप पॉलीक्लिनिक, या कई लोग पॉलीक्लिनिक चलाते हैं भाई, कई लोग एक टाइम और स्पेस मैनेजमेंट को यूज करते हैं, वो भी कर सकते हो, वो भी कर लो आप। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, लोगों के अंदर बहुत चार्म है गवर्नमेंट सेक्टर का। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहला नंबर आता है भाई लेक्चरर या प्रोफेसर बनने का। लेक्चरर से शुरुआत होती है, वो प्रमोट होते होते प्रोफेसर बनते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हो। पीजी करने के बाद आप जो भी यूपीएससी या जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके द्वारा रिटर्न और इंटरव्यू क्रैक करके आप वो बन सकते हो। उस पर कैसे तैयारी करें, उसके लिए मैं आपको एक बार और कभी सेशन दे दूंगा कि कैसे तैयारी करें, ठीक है। उसके अलावा आपका, जैसे भैया पूछ रहा था कि ये पीजीटी की तैयारी कैसे करें, तो उसकी भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे विषय अलग हैं आज के विषय से। फिर है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, जो कि हमारे डिस्पेंसरीज में, जैसे अपने यूपी में बहुत सारे निकलती है पोस्ट, जब निकलती है तो डिस्पेंसरीज में आप यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकते हो। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट निकलती है सीसीआरएस और मिनिस्ट्री में, ये भी गवर्नमेंट होती हैं। बट कुछ पोस्ट होती हैं जो टेन्योर बेस्ड होती हैं। जो टेन्योर बेस्ड पोस्ट होती हैं उसमें से जैसे सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट हो गई हॉस्पिटल चलाने के लिए, 3 साल का टेन्योर होता है इनका। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट हो गई। इसके अलावा जेआरएफ, एसआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, आपको सीसीआरएस में बहुत सारे ऐसी पोस्टें मिल जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, जैसे ईएसआई है, रेलवेज है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ये अलग अलग अपने अपने हिसाब किताब से निकालती रहती हैं। पर जो अमूमन आपको गवर्नमेंट जॉब का मैंने बताया, उसमें जो इनिशियली
पैकेज आपका होगा, आपके अंदर ये भी जानकारी चाहनी होगी भाई पैकेज क्या मिलेगा मुझे, तो पैकेज जो होगा ना वो 7 से लेके 12 के बीच में पर एनम पड़ता है, 7 लाख to 12 लाख पर एनम, मतलब इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट के अलग स्केल्स हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो आपको लगभग मैंने जो बताया, और जो टेन्योर बेस है, जो वैसे मैंने आपको जीआरएफ एसआरएफ इनका बताया, इनका 3 to 4 to 5 ये वेरी करता है पर एनम, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको सिविल सर्विसेज में जाना है वो सिविल सर्विसेज में जा सकता है तैयारी करके। तो ये इसके कुछ अपने अंग हैं। ये तो गवर्नमेंट का हो गया। मैडम कुछ क्वेश्चन पूछना बीच में तो पूछ लीजिए, अभी मैं थोड़ा लंबा चलूंगा। कोई और बीच में कोई क्वेरी आ रही हो? नहीं चलेगा। हाँ नहीं तो आप कंटिन्यू कीजिए। अब प्राइवेट का आ गया हिसाब किताब। प्राइवेट, गवर्नमेंट चार्मिंग लगता है बट प्राइवेट में ज्यादा कॉम्पिटेंसी है। प्राइवेट में आपको निचोड़ लेंगे तब जाके आपको पैसे देंगे। तो प्राइवेट भी कोई आसान चीज नहीं है, तो इसलिए आपको उसके लिए भी कॉम्पिटेंट बनना होगा, उसके लिए भी पंक्चुअल बनना होगा, उसके लिए भी आपको प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो कुछ सेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा प्राइवेट में, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल टूरिज्म है, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट सेक्टर है, क्लिनिकल रिसर्च है, और बहुत सारे हैं। मैंने तो जब देखना शुरू किया तो बहुत सारे हैं, इन पे एक एक अलग अलग हो सकता है। लेकिन वही है कि आप लोग भी, जैसे मैं R&D कर रहा हूं, आप भी R&D करके कर सकते हो। सो आई विल गिव सम वेरी बेसिक आइडियाज अबाउट दिस। बहुत ज्यादा नहीं गो थ्रू रहूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दूंगा। तो जैसे हेल्थ, अपना हेल्थ सेक्टर का हो गया। हेल्थ सेक्टर से जब शुरू करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला हमारा आता है इंश्योरेंस सेक्टर, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इन टायर 1-2 सिटीज में सब में आ गया है इंश्योरेंस सेक्टर। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर देयर इन इंश्योरेंस सेक्टर? So they can share their knowledge in the following designations, like in medical underwriting. मेडिकल अंडर राइटर्स होते हैं जो अब जो आप क्लेम करते हो वो ये बताते हैं कि ये सही क्लेम किया, गलत क्लेम किया, ये डिजीज सही बता रहा है, या जो इसने एक्सक्लूड किया अपनी डिजीज को उसके बारे में तो पैसे नहीं मांग रहा है। ये इंश्योरेंस कंपनी की ओर से रखे जाते हैं। तो मेडिकल अंडर राइटर्स हो गए, क्लेम प्रोसेसिंग हो गई आपकी, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो गए, क्वालिटी चेक हो गया, कस्टमर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, इसमें लीगल डिपार्टमेंट है अगर आप साथ में LLB कर लेते हो तो फ्रॉड और एब्यूज मैनेजमेंट, इनमें से आप किसी में भी जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इसके अंदर, है ना, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के भी इंश्योरेंस है, वहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू भी आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो। कोर्सेज क्या है? कोर्सेज वैसे अमूमन बैचलर्स डिग्री और MBA BBA होता है इनमें, बट जनरली मैं डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर के लिए बताना है मुझे, तो मैं उसमें इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा PGDHI कोर्स का नाम है, PGDHI पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ इंश्योरेंस। ये जो PG डिप्लोमा में धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चे जो लिखना चाहे वो लिख भी लेंगे थोड़ा बहुत। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन 2013-14 बाय इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तब से उन्होंने शुरुआत की। और इसमें आपका 1 ईयर का इसका टेन्योर है। फी स्ट्रक्चर जो है वो 45,000 से लेके के आसपास की है, 1 साल की। अमूमन जो भी डिप्लोमा कोर्स होंगे वो 1 साल के होंगे, और अमूमन मैं आपको पहले बता दूं कि इनकी जो फीस होगी 50 to 1 के बीच में वेरी करेगी, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट, डिपेंड ऑन देयर रेटिंग। और मैं कैरियर काउंसलर नहीं हूं, ये मैं पहले बता दूं, तो इसलिए मेरी जो R&D है वो बहुत ही बेसिक लेवल की है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि बच्चों को ये लगे कि हाँ भाई करने के लिए है बहुत सारी चीजें BHMS के बाद, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो, इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो आउटसोर्स द TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। भाई अपना काम किसी और को दे दिया, वहां किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो आपको उन्होंने रख लिया एज ए TPA, तो आप वहां पे क्लेम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एवरेज जो फ्रेशर की शुरुआत है वो 3 to 3.5 लाख पर एनम से फ्रेशर की शुरुआत होती है। फिर है मेडिकल टूरिज्म सेक्टर। वी नो इंडिया इज वेरी मच पॉपुलर इन मेडिकल फील्ड एंड द patients from Southeast Asia, Middle East, Africa and SAARC regions are coming here for treatment. So because here treatment is very good, quality is very good and cheaper treatment है। तो आपका उसमें आपका रोल क्या है? आपका रोल ये है कि आप उसमें उसके मैनेजमेंट सेक्टर में जाकर के मैनेजमेंट करके आप उस सेक्टर से जुड़ सकते हैं। तो कैरियर मेडिकल टूरिज्म में भी आपका
ठीक ठाक हो सकता है। इसमें भी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है मेडिकल टूरिज्म में। सर्टिफिकेशन कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड मेडिकल टूरिज्म। इसमें आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो भी स्किल है, जिस दिशा में आप जाना चाहो कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से ये होता है, जैसे KMCH है तमिलनाडु का, इसके अलावा कोयम्बटूर में डॉक्टर NGP आर्ट एंड साइंस है। ये सब आपको गूगल पे आप खुद ही सर्च करके देख लेते हो, तमिलनाडु में ज्यादातर हैं। इसके अलावा श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट है चेन्नई में, वहां से भी आपको इसका कोर्स होता है। The students who make a good blend of these two professions, namely medical tourism and hospital administration, have better opening in their career. तो अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टूरिज्म आपने दोनों किया हुआ है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल कंपनी 2-3 क्वालिफिकेशन आपके लिए ढूंढती है। तो आपकी जो इसमें भी सैलरी का स्टार्ट है वो 2.5 to 3 लाख पर एनम के आसपास इसमें ग्रोथ है आपकी। बाकी आप मेडिकल टूरिज्म आराम से टाइप कीजिए गूगल पे, बहुत मिलेगा आपको। तो इसमें ज्यादा ना समय लगाते हुए मैं आगे आता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो लाइक एवरी सेक्टर, इवन हॉस्पिटल नीड मैनेजमेंट फॉर इट टू रन स्मूथली, है ना। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर द मासेस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द पीपल एंड दैट टू इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि अपने यहाँ दे वांट टू कीप गुड मैनेजर्स। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का बंदा जाएगा, उसको करना पड़ेगा MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा मेडिकल वाला है वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर ले, तो उससे भी उसका काम चल जाएगा। और आपको मैं बताऊं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में FMS है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत रेप्यूटेड है। वहां एंट्रेंस होता है और हमारे यहाँ के 2-4 बहुत सारे डॉक्टर्स जो पास आउट थे BHMS, इवन हमारे एक्स प्रिंसिपल ने भी वहां से MBA किया हुआ है FMS से। तो आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है MBA का, तो वहां पे तो आप वहां एग्जाम भी दे सकते हो जाकर के, और उनकी क्लासेस भी वीकेंड्स में लगती हैं। तो इस तरीके से करते हैं मैनेज कि आप कर सको। लेकिन यहां मैं एक चीज बच्चों को बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी, कभी भी 2 कोर्सेज एक साथ मत करना। क्या हो रहा है, बच्चा होम्योपैथी भी कर रहा है, नेचुरोपैथी भी कर रहा है साथ में सर्टिफिकेशन कोर्स। कभी क्या कर रहा है कि ये भी कर लूं मैं, वो भी कर लूं, न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट का भी कर लूं। सब एक ही सेशन में कर लोगे तो तुम्हारी BHMS की डिग्री खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज कर देगा तुम्हें कि तुम BHMS कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करो, एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा करना। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट है, टाइम बचा रहे हैं जी, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बट दैट इज नॉट लीगल। इफ यू आर डूइंग ए मेडिकल डिग्री, तो आपको उसमें मेडिकल डिग्री ही करनी है। इसके साथ में कोई भी नेचुरोपैथी, ये पैथी वो पैथी आप अपने क्लिनिक पे लगाने के लिए टेंट्रम्स, वो अलग चीज है। बट अगर कोई आपके पीछे पड़ गया, कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। जब समय खराब होता है तो कोई भी आपके पीछे पड़ जाएगा और वो आपके फिर निकालेगा कमियां। तो आप क्यों किसी को लूप खोल दो। तो इसलिए आप जो है प्रॉपर एक टाइम में एक चीज करो। तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज का आप कर सकते हो FMS दिल्ली से, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे द इंडियन सोसाइटी ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ईशा ऑफर 1 ईयर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स। तो आप वहां से कर सकते हो। तो ये आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। वहां भी पर्क्स एंड पैकेजेस जो है एज पर पेस्केल.com और जागरण जोश, ये कह रहे हैं कि 3 to 4 लाख पर एनम से इनकी फ्रेशर्स की शुरुआत होती है। किसी भी फ्रेशर की शुरुआत तो बहुत हाई ग्रेड से होगी नहीं, गवर्नमेंट जॉब को आप एक्सेप्शनल मानो, तो फिर भी आपको आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा दे आर अर्निंग नाउ 12 लाख पर, मतलब दे स्टार्टेड फ्रॉम 3 to 4 बट दे हैव रीच्ड नाउ एट 12 लाख 13 लाख इवन मोर। तो ऐसा नहीं है कि वो रास्ता बंद हो गया 3-4 लाख पे। आप वही है कि जैसे प्रैक्टिस में आपको अपना दिमाग लगा कर रखना है, उससे काम में दिमाग लगाओगे आगे बढ़ते जाओगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो कंपनीज है जो आपको लेती हैं, जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको ले लेते हैं। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे मैनेजर्स रखे हुए हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के उसमें सेक्टर में, जो हॉस्पिटल्स को देखते हैं हॉस्पिटल मैनेजर्स। मैं भी कहीं इंस्पेक्शन करने जाता हूँ तो वो हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी लेते हैं आपको, प्राइवेट सेक्टर वाले भी लेते हैं, हेल्थ एजेंसीज हैं, लैब्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वहां भी जाके काम कर रहे हैं लोग हमारे यहाँ से बीएचएमएस करने के बाद भी। तो मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन हैं, मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको रख लेंगे, ठीक है, मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, तो आपका स्कोप बहुत है इसमें। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ सर, प्लीज प्लीज, बिल्कुल। प्रवचन देना थोड़ा अच्छा, अब आ गया आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर। सबको पता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर का। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में public health is a stream in science which deals in taking appropriate measures in improving health conditions of the society and communities by educating them about various diseases and helping them understand preventive measures। जैसे आज के आपके वेरियस प्रोग्राम्स चलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का, पोलियो का, इसका उसका ना, जैसे मैंने कहा नेशनल अर्बन है, नेशनल हेल्थ मिशन है जो अर्बन है, रूरल हैं, ये सारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के हैं। और हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे भी है, इसका सर्टिफिकेशन कोर्स करके पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो भी एक आपका स्ट्रीम है, वहां भी जा सकते हैं। इसमें मेडिसिन के फील्ड से आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुछ कॉलेजेस हैं वो आपको मैं बता देता हूं, जैसे अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है गांधीनगर में, इसके अलावा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला कासरगोड, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिप्मर जिसे बोलते हैं, वो है पुडुचेरी में। हाँ, आजकल पुडुचेरी बोलते हैं उसको। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है गुड़गांव। ओके। फिर जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर। इस तरीके से आपको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद ही पता है, आप कैसे आप पता कर सकते हो इसको बहुत आसानी से, मैं सिर्फ आपको स्ट्रीम से यहाँ बता रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट कुछ अच्छे हैं, कुछ भुवनेश्वर का भी एक है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, भी अच्छा माना जाता है। टेस्ट से भी करते हैं हमारे यहाँ बच्चे, सिम्बायोसिस से भी करते हैं, आपके पुणे में है, तो काफी पॉपुलर है वो। तो सैलरी स्ट्रक्चर का वही है, 2.5 से 3 लाख का स्टार्ट है इसका पर एनम का। इसके अलावा जो अगला सेक्टर है वो क्वालिटी मैनेजमेंट का है। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, आजकल आप देखते होंगे कि नैक, एनएबीएच एक्रेडिटेशंस, नैक एक्रेडिटेशंस, बहुत सारे कॉलेजेस में नैक एक्रेडिटेशन चलता है, हॉस्पिटल्स में एनएबीएच एक्रेडिटेशन चलता है। तो इनके एक्रेडिटेटर्स होते हैं, तो इनके एक्रेडिटेशन का डिप्लोमा कोर्स आपको करना होता है, जिसमें आप हॉस्पिटल में जाके उनके सारे क्वालिटी चेक्स को देखते हो। जैसे अभी आपने जिक्र किया कायाकल्प में, मेरे को नोडल अफसर था, तो हम लोगों को भी हमारे यहाँ भी कायाकल्प प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत कुछ 150 पॉइंट दिए हुए हैं। उन 150 पैरामीटर्स पे ओटी से लेकर के सारी चीजों को, यानी एलोपैथिक हॉस्पिटल से लेकर आयुष तक सारे उसके अंडर में आते हैं। तो यानी आपकी बाहर की पेरिफेरी से लेके जहां से आप घुस रहे हो, वहां कैटल ट्रैप लगा है कि नहीं से लेकर के, और गार्ड ने वो पहना है कि नहीं यूनिफॉर्म, सबके पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट पे मेजर करके आपके हॉस्पिटल को कैटेगराइज किया जाता है कि आप ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी में। जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट प्राइज देती है। तो ये आप क्वालिटी मैनेजमेंट भी जब करोगे जाकर के आप डिप्लोमा, तो आप वहां एक्रेडिटेट कर सकते हो किसी भी हॉस्पिटल को, आपका लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेटर्स में नाम आ जाएगा, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में विजिट करने को मिलेगी, बहुत स्वागत होगा आपका, बहुत सत्कार होगा कि जी हमें दे दो एक्रेडिटेशन, और आप एकदम अपने बॉस की तरह वहां बिहेव कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। गिफ्ट अब ये आपका अपना कंडक्ट है, कैरेक्टर है, वो आप लेते हो कि नहीं लेते। तो वहां पे भी 3 to 4 लाख पर एनम की शुरुआत है इसमें, क्योंकि जब उनके यहाँ होता है तो सबसे पहले वो अपने यहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजर रखते हैं कि हम अपने यहाँ खुद तो पहले चेक कर लें। जब वो मैनेजर्स अपने को स्किल्ड कर लेते हैं तब वो एक्रेडिटेटर बनते हैं। जैसे पहले हम स्टूडेंट होते हैं फिर एग्जामिनर बनते हैं, ऑब्वियसली वैसे ही इसमें भी सिस्टम है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च की भी बहुत डिमांड है। सीसीआरएच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीसीआरएच होम्योपैथी से रिलेटेड पूरा हो गया, वहां पे आपके जेआरएफ एसआरएफ की पोस्ट के बारे में मैं कह चुका हूं। यहाँ क्लिनिकल रिसर्च की बात मैं एलोपैथिक बैकग्राउंड की कह रहा हूं कि वहां भी हमारे बीएचएमएस जो डॉक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर सर्टिफिकेशन कोर्स। इनके भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, जैसे इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग, सेंट्रल लैब, है ना, ऑडिटिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स, कैसे ऑडिट करते हो क्लिनिकल ट्रायल सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जो वेरियस कोर्सेज हैं इसमें, या वेरियस जो पोस्ट हैं, लाइक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है आप बन जाओगे, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर बन जाओगे, क्लिनिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बन जाओगे, डाटा क्लिनिकल डाटा मैनेजर बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं
यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो उस लाइफ को। डॉक्टर्स जो है वो पैसे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आते हैं, ज्यादातर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्लिनिकल रिसर्च जो हार्डकोर है एलोपैथी में, वो एलोपैथी होते हैं। आप जो होते हैं उनके उनके असिस्टेंट होते हैं या आप उन्हें असिस्ट करते हो। बट आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, उनके साइंस सिम्टम्स के बारे में, जैसे प्रूविंग करते हैं हम लोग, वैसे वो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी बनाते हैं, कैसे हम पेशेंट से साइन करवाएं, कैसे कंसेंट लें, इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, सब उनको पता होता है। तो इस तरीके से वो इस पे प्रोग्रेस करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर इज ऑल्सो गुड। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है 1 साल का, और बैचलर डिग्री भी है 3 साल की इसमें। तो अब तो ऑब्वियसली आप अगर BHMS करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज मच बेटर देन डूइंग दैट। इसमें भी जो आपकी कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ICRI मुंबई, इसके अलावा आपका एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुंबई, आपके आसपास के एरिया आ रहे हैं सारे, है ना। APJ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूट मुंबई, इस तरीके से आप वहां जाकर के और भी आप देख सकते हो कि क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो तो आप कहां से कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास इतने सारे स्कोप हैं, अभी तो मैं आधे बताए, बहुत स्कोप है। तो यहाँ भी आपको मुझे भी नहीं मालूम इसमें 2.5 से 3 लाख पर एनम तक का आपको पैकेज मिल सकता है इनिशियली। तो अब आप बिल्कुल निराश मत होइए कि आपके पास BHMS करने के बाद रास्ता आपका बंद हो गया और आप जो है कुछ नहीं कर सकते। बहुत स्कोप है आपके पास। बस वही वाली बात है ना कि इनिशियली चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस हो, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हम लोग अर्न कितना कर लेते हैं, इनिशियली हम लोग भी उतना ही करते हैं, 2.5 लाख पर एनम। हम तो ज्यादा ही बोल रहे हैं, और कम से होता है, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, बट फिर भी देखो करते करते पहुंच जाते हैं अच्छी जगह। तो हर फील्ड में आप जिसमें भी जाओ उसमें आप सही पहुंच जाओगे। तो धीरे धीरे करके आप पहुंचोगे। बस वही वाली बात है कि आपको करना क्या है, ये आपको अपनी ओर से डिसाइड करना है। और मेरे हिसाब से मैंने जो है अपनी ओर से तो ये कुछ बता दिया है। बाकी अगर किसी को कुछ सजेशन क्वेश्चन है तो मैं बताना चाहूंगा। बहुत 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 सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं और वो पब्लिश कैसे होते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और हम लोग पढ़ते हैं, मैं तो शेयर भी करती हूँ आपके लिखे हुए आर्टिकल्स। तो कैसे कैसे करते हैं ये? एक्चुअल आर्टिकल लिखने के लिए एक तो आपको CCRH की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च इन होम्योपैथी। वहां पे पूरा प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि कैसे आप आर्टिकल लिखो। वहां पे स्टूडेंट्स के लिए भी एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, एक स्कॉलरशिप चलाते हैं शायद, S3SH प्रोग्राम कुछ होता है उनका, कि स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं कि वो आर्टिकल कैसे लिखें। दूसरी चीज, आर्टिकल कैसे लिखें, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है। क्या आर्टिकल पहले पढ़िए, आर्टिकल जब पढ़ेंगे ना आप तो पता लगेगा कि आर्टिकल कैसे लिखें। तो जैसे अच्छे जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, जैसे आप पबमेड में जाओ, पबमेड में होम्योपैथी है करके है, आप वहां देखो कि होम्योपैथी भी कितना रिसर्च हुआ है। और इसी तरीके से आप गूगल स्कॉलर है उसमें जाओ, वहां देखो। तो आर्टिकल लिखने के लिए पहले आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो कुछ भी उठाया लिख दिया वो आर्टिकल हो गया। और उसमें भी मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं कि बहुत बेसिक तरीका है कि सबसे पहले तो आप अपने क्लिनिकल जो केसेस होते हैं उनको पब्लिश करो। जब क्लिनिकल केसेस आपके पब्लिश होने लगे, अच्छे होने लगे, उसको पब्लिश करने के भी उसके नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपके किस स्टाइल में कौन सी चीज आएगी, रेफरेंस किस स्टाइल में लिखना है, इंट्रोडक्शन किस स्टाइल में है, सारे उसमें दिए हुए हैं, आप वहां पढ़ो जा करके। फिर आप ग्रुप ऑफ केस स्टडीज छापो, फिर आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप जाकर के फिर एनालिटिकल स्टडीज वगैरह छाप सकते हो, यानी कोहोर्ट स्टडीज या इस तरीके की चीज देख कर सकते हो। बट वो आपका पूरा एक प्रोटोकॉल है। और जो हमारे बच्चे PG कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाया ही जाता है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर जानते हैं इस चीज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो आर्टिकल लिखने में मैं सबसे ज्यादा जिस चीज को तवज्जो देती हूँ वो है प्लेगरिज्म। प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट। एक सेकंड में पकड़ा जाता है, हमको ये बात नहीं पता है। वहाँ सॉफ्टवेयर हैं और वहाँ पैनलिस्ट बिठाए रखते हैं। मैंने एक भी लाइन लिखी ना, अगर जैसे द ब्लैक फंगस इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोमाइकोसिस, वो आपकी एक लाइन इनपुट करेंगे और ये पता चल जाएगा आपने कौन से कहाँ से कॉपी किया, और आर्टिकल और डेजर्टेशन आपने ऊपर भेज कर मारेंगे। तो ये मैं हमेशा से इसी चीज को प्रमोट करती हूँ, कॉपी पेस्ट ना करें, चोरी चकारी नहीं करें। बीइंग अ होम्योपैथ एक रेपुटेशन डेवलप करें। अगर मान लीजिए मैंने एक डॉक्टर मिश्रा का आर्टिकल पढ़ा हाइपोथायराइडिज्म का या थायराइड या डायबिटीज का, और मुझे एक चीज बहुत पसंद आई और मुझे ये अपने आर्टिकल में डेजर्टेशन में लिखनी ही है। तो मैं क्या लिखूंगी, एज
quoted by हाँ so and so article by Dr. Mishra, yes this work, this volume. ये बात मुझे बहुत पसंद आई और मैं इस चीज को बाद में एक्नॉलेज कर दूं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मिश्रा, उनके आर्टिकल से मुझे बहुत फायदा हुआ। तो यहाँ मैंने इसी एबनॉर्मल को नॉर्मल कर लिया, इसी इलीगल को मैंने लीगल कर लिया, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देकर। तो इस चीज का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा है, एक और चीज है कि क्वेश्चन आर्टिकल लिखते समय सबसे पहले कि क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं। आप क्वेश्चन क्या आपके मन में पढ़ाते हैं ना, जब आर्टिकल करते हैं आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो भाई, आपके भाई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं होता, तो पहले क्वेश्चन बनाना सीखो। आप जाओ देखो वेबसाइट पे, आप बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको सीसीआरएच के, आप वहां पे देखो। बहुत अच्छे हमारे इंस्टीट्यूट है सीसीआरएच जिसके लिए प्रमोट करता है। बिल्कुल। एक चीज और बताती हूँ, मैं आर्टिकल कैसे पढ़ती हूँ, कैसे देखती हूँ। जैसे हर पिक्चर की रिलीज से पहले ना, हर पिक्चर के रिलीज से पहले एक प्रोमो रिलीज होता है। भाई मिर्जापुर आई, हमने मिर्जापुर देखी, धाई धूप देखा, डायलॉग देखे, तो हम कितने एक्साइटेड हो गए, वाओ मिर्जापुर बहुत अच्छी है, राइट। ऐसे ही हर आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पे इतना ध्यान देना चाहिए। मैं क्यों पढ़ूंगी 6 पेज का आर्टिकल, मैं अपने 10 मिनट्स क्यों लगाऊंगी अपने प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बोले। ऐसा क्या है इस आर्टिकल में जो मुझे नहीं मालूम है या मुझे फायदा करेगा। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट और आपका कंक्लूजन बहुत धमाकेदार होना चाहिए। बिल्कुल सही। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ऐसा लगे कि हमें ये पिक्चर देखनी है, मुझे ये 6 पेज का आर्टिकल पढ़ना ही है, मुझे ये रिसर्च पढ़नी है। बिल्कुल। आई होप कुछ कमी पेशी है तो आप बता। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ने लगते हैं तो उसमें ज्यादातर स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज होती है, वो बच्चों को समझ में नहीं आती, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हटा करके बाकी सोचते हैं कि बाकी पढ़ डालें। बट एक्चुअली वही स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज तो आपको वो एक दे रही है, गाइडेंस दे रही है कि स्टडी किस तरफ जा रही है। तो इसलिए वो आपको पढ़ना, उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। तो इसलिए चिंता ना करें आप भी। मैं एक आर्टिकल के बारे में बताती हूँ, मेरा खुद का ही लिखा हुआ आर्टिकल है, और मैं ये बताती हूँ कि हम आर्टिकल कितने अलग लिख सकते हैं। मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, रोल ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स एज एंटी स्पाज्मोडिक, है ना, कुछ इस तरह से था। टाइटल पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है सारी कहानी टाइटल पे ही है। प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, कुछ कुछ होता है, टाइटल बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की रेमेडीज का पैथोफिजियोलॉजिकल और फार्माकोडायनामिक एक्शन देखा था, और जो भी रेमेडीज एंटी स्पाज्मोडिक थी, कि वो नक्सवोमिका थी या कोलोसिन थी या ब्राइनिया थी, जिनका एंटी स्पाज, उनको इकट्ठा किया था और उसके बाद कंक्लूड किया था कि वो कौन सी फैमिलीज हैं या वो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो किस बॉडी पे काम कर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे काम कर रही हैं। जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि नक्सवोमिका में और इपिकैक में दोनों में नॉजिया वॉमिटिंग है, और इपिकैक का मोर ऑफ नर्वस है, जबकि नक्सवोमिका का लाइफस्टाइल की वजह से है या गैस्ट्रिक है। तो जब हम रिसर्च करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, देन वी कम अप टू अ कंक्लूजन। तो आप नया क्या कर सकते हैं, ये तो गूगल पे बहुत लिटरेचर। तो वही तो, यही तो क्वेश्चन हुआ ना कि एंटी स्पाज्मोडिक पे कौन कौन सी मेडिसिन एक्ट करती है, क्वेश्चन ही बना ना। तो क्वेश्चन बनाओगे जब आप देखोगे, और फिर जो आपने क्वेश्चन बनाया उसको जाकर के आप, जो मैंने आपको बताया, वहां जाकर के देख लो, वो रिलेटेड टॉपिक सर्च मार दो कि उससे रिलेटेड पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पहले हुआ है तो और सोचो। ऐसा नहीं हुआ कि भैया आपने एक चीज सोच ली और वो आपकी मौलिक सोच आ गई, उसको पहले आप देख लो। और हाँ, ये हो सकता है कि आपको उस टॉपिक से थोड़ा आइडिया मिल जाए कि अभी इस पे हो गया, इस पे नहीं हुआ है, इस पे कर लेते हैं, ये आपको आइडिया देगा वहां। सही बात है, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। जैसे मैं अगर मस्कुलर क्रैम्प और रस्टॉक्स पे लिख दूं तो मैं क्या नया कर दूंगी, मेरे एक आर्टिकल से क्या बिगड़ने वाला है। बिल्कुल सही बात। कौन पढ़ेगा, है ना। तो जैसे हम पिक्चर बनाने से पहले सोचते हैं ना, मुझे लगता है उतना ही दिमाग चाहिए। मतलब कहने को 6 पेज का 3 पेज का आर्टिकल है, पर ट्रस्ट में मुझे 3 मंथ्स लगते हैं एक आर्टिकल लिखने। अरे बहुत, मतलब आई एम लर्निंग इट 3 मंथ्स एक आर्टिकल के लिए। बिल्कुल वो जिस्ट होता है ना उसका, आपकी पूरी मेहनत का। और कोई क्वेश्चन है, अब हम ऑडियंस को क्वेश्चंस कुछ पिकअप कर लेते हैं। हाँ, श्योर। फ्रॉम व्हिच ईयर ऑफ बीएचएमएस वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एमडी गवर्नमेंट कॉलेज। किस ईयर से पीजी की तैयारी, एमडी करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी शुरू करनी चाहिए? देखो, आप अगर अच्छे से यूजी पढ़ोगे ना तो आधी तैयारी तो वैसी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि यूजी पढ़ते समय हम पीजी की बुक लेकर के और एंट्रेंस की कर रहे होते हैं, जिस समय आपकी जो मटेरियल है, पीजे मेहता है या हचिंसन है या डेविडसन है या जो भी है, जब आप वो पढ़ोगे तो उसमें से तो क्वेश्चन आने हैं। तो वो आप पढ़ो अच्छे से। साइड बाय साइड क्या करो कि आप एमसीक्यूज करना शुरू कर दो, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो। 3rd ईयर से मेरे हिसाब से
थर्ड ईयर गुड बिकॉज दे आर क्लिनिकल सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर. सर्जरी है, गायनी ऑप्स है, और वो वेटेज भी कवर करता है. और पीजी के लिए तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन सा पीजी एंट्रेंस में वेटेज किस किस सब्जेक्ट का ज्यादा है, क्योंकि ऐसे तैयारी नहीं करनी है. जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्मार्टली चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, आपको भी स्मार्ट बनना होगा. पता लगा कि आपने एनाटॉमी में सारा टाइम लगा दिया जिसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. exactly. तो आप ये पहले देख लो, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे कभी कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए. बट थर्ड ईयर, आई थिंक थर्ड ईयर गुड. सर आपने मेरे हिसाब से कोई सेशन दिया है ना? एक बार दिया है मैंने, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वालों का, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन वालों में यूपीएससी की प्रिपरेशन का दिया था. तो सर आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगी. तो जो स्टूडेंट अब ये तो मैं देखता हूँ, मैं अगर यूट्यूब पे होगा तो शायद होगा, वो शायद उस समय रिकॉर्ड नहीं पाया था मेरे हिसाब से. मैं देख लूंगा फिर भी. सर दूसरा क्वेश्चन ये है, निगम डॉक्टर शालिनी पूछ रही हैं, हाउ टू चूज सब्जेक्ट फॉर एमडी? इट शुड बी इंटरेस्ट बेसिस और द स्कोप ऑफ द जॉब. सब्जेक्ट कैसे चूज करें एमडी का? हाँ बिल्कुल सही बात है. तो पहली बात तो इंटरेस्ट ही है भाई. मैं एमडी अगर मैं पढ़ रहा हूँ होम्योपैथी में, तो मुझे मेटेरियल मेडिका ज्यादा अच्छी लग रही है कि रिपर्टी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये कौन सा क्या अपील कर रहा है. क्योंकि प्रैक्टिस एक्चुअली जब आप एमडी कर रहे होते हो तो सब्जेक्ट तो आपको सारे ही पढ़ाए जा रहे होते हैं साइड बाय साइड. आप ऑर्गेनल भी पढ़ रहे होते हो, की क्लास भी ले रहे होते हो, आप रिपर्टी की भी क्लास ले रहे होते हो, आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की भी ले रहे होते हो. पढ़ना तो हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट है आपको. लेकिन आपकी इंटरेस्ट किस में है? जब आपने यूजी किया तो आप उस दिशा में जाओ. पहली बात इंटरेस्ट. अब दूसरी बात, इंटरेस्ट के हिसाब से आप रैंक तो ले आओ, तब तो आपको मिलेगा ना, काउंसलिंग होगी. वरना तो बेगर हैव नो चॉइस वाला हाल है. तो जो मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा. तो आपका इंटरेस्ट और रैंक ये दोनों मैटर करते हैं. और अगर जैसे कुछ होते हैं जो क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल हार्ड एकेडमिक होते हैं. तो आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो आप हार्ड एकेडमिक वाले सब्जेक्ट ले लो. अदरवाइज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले जो हैं ज्यादातर आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं. बिल्कुल. सर देयर इज अ क्वेश्चन कि सर गायनेक का क्या फ्यूचर है आफ्टर बीएचएमएस? हाँ बहुत फ्यूचर है. हमारी जो है अपनी प्रोफेशनल कंडक्ट जो और कोड ऑफ एथिक्स एटिकेट एक्ट जो है वो भी कहता है कि आप गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस से आपका क्या मतलब है? ऑब्स वाला काम करने का बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? आपका क्या उसमें औचित्य क्या है? गायनेकोलॉजिकल तो वैसे भी आप जनरल फिजिशियन है तो वैसे भी गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस करोगे. और आपके पास कोई जो है बच्चों को जन्म देने के लिए क्यों आएगा, ये बताइए आप मुझे. उसके पास इतने सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनके सामने इतनी तो समझ उनको भी है कि किसके लिए किसके पास जाना है. आपको सब आता है, आप लेबर करा लेते हो, सब करा लेते हो, आपके पास आए तो सही करवाने. तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप उन चीजों पे काम करो जिन चीजों के लिए और जगह उनको दौड़ना पड़ता है. जैसे आप फाइब्राइड का ट्रीटमेंट, आप सिस्ट का ट्रीटमेंट, एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया, इन सब चीजों का ट्रीटमेंट पे आप महारत हासिल करो. तो ये जो है ना, चार्मिंग वर्ड्स लगते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट बन जाऊं, कि मैं फलाना बन जाऊं, पर एक्चुअली हम फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन ही है. और हम सब चीज, हम आंख की भी बीमारी ट्रीट कर रहे हैं, हम ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट भी, सब कुछ ही हैं हम. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. हाँ सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है पर मुझे पता है आप समाप्त कर ही देंगे. डॉक्टर रितेश इज आस्किंग, Riteshwar is asking, please suggest some idea about clinical setup. क्लिनिकल सेटअप. तो क्लिनिकल सेटअप जैसे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, तो अभी क्या है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी में था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के. तो एक मिनिमम क्लिनिक को एस्टेब्लिश करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना हुआ है. अभी शायद ये राज्यसभा में है या राज्यसभा से पास हो गया, मुझे आइडिया नहीं है. आप जो है जाकर के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होम्योपैथी देखो, और उसमें पूरा दिया हुआ है कि क्लिनिकल सेटअप के लिए आपको क्या क्या चीज आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अभी जब ये नोटिफाई होगा उसके बाद ये भी आएगा कि आपका कितने बाय कितने का क्लिनिक होना चाहिए, आपके क्लिनिक पे कौन कौन से जरूरी इक्विपमेंट होने चाहिए, आपको बायोमेडिकल वेस्ट टूल पता होने चाहिए. क्योंकि अगर आप हल्का सा ग्लूकोमीटर में पिंच भी मारते हो, वो सुई भी अगर लगाते हो आप शुगर चेक करने के लिए, तो आप एक वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहे हो. तो उसके लिए 5000 वन टाइम आपको एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा जाकर के अथॉरिटी से, तब आप उसको रख सकते हो अपने पास, अदरवाइज आप पे लग जाएगी पेनाल्टी. तो इसलिए ये सारी चीजें आपको उसमें आपको लिखे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, वो आप पढ़ो, उसके हिसाब से क्लिनिक सेट करो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है. क्योंकि जब हमारे पास ये ड्राफ्ट आया तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट बता दी गई थी. बोला गया कि इतने बाई इतने का कमरा हो. मैंने कहा कि एक बिगिनर होगा
तो उसके लिए तो 2-3 चीज चाहिए, एक बीपी एपरेटस चाहिए, एक स्टेथो चाहिए, छोटा सा टेबल चाहिए, और मेरे ख्याल से 10x12 का चैम्बर बहुत है, क्योंकि 1-2 पेशेंट आते हैं। तो हम ऐसा पैरामीटर रखें जिसमें एक बिगिनर भी अपने को सहज महसूस कर सके। बड़ा तो आप कितना भी कर लोगे और रखने को तो आप अपने एमआरआई भी कर लोगे, अगर वेल टू डू हो तो बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन मिनिमम आपके लिए आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। वेरी करेक्ट। मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस यू वर द ओनली पर्सन हु वाज देयर, यू नो, इन थिक एंड थिन। ऐसे मत अरे करो, वो यहाँ पे भगवान किसी न किसी से मिलवा देता नहीं है, सर, बस ये तो है। नहीं 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 सर, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हालांकि मुझे 3-4 महीने बहुत चप्पल घिसनी पड़ी, म्युनिसिपैलिटी वाले, ग्राम हाँ हाँ पंचायत हाँ वाले, हाँ, मेडिकल बट वेस्ट, आपका उसके बाद आप, एक ड्रग कॉस्मेटिक हम्म इंस्पेक्टर भी भेजा था आपने। लेकिन लेकिन आई फेल्ट दैट कॉन्फिडेंस इन मी, तो हाँ, जो मैं क्योंकि कर रही हम हूँ वो गलत नहीं एकदम। होंगे ना, तो फिर हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहती हूँ, जो हमारा फर्स्ट वाला सेशन हुआ था उसमें सर ने बताया था, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे होम्योपैथ दवाइयाँ छुपा छुपा कर देते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा उन डॉक्टर्स में से हैं जो कहते हैं कि दवाई बता के दो, पेशेंट का ये हम्म अधिकार है कि वो जाने कि उसको क्या दवाई दी जा रही है। हम्म बिल्कुल राइट क्या है ये बात पेशेंट का। सही है? देखो देखो, पेशेंट का बिल्कुल राइट है। पेशेंट का राइट है भाई, बल्कि प्रिस्क्रिप्शन भी दीजिए आप उसको, और उसमें आप एक नोट नीचे लिख दीजिए कि भाई अगर आपने ये दवाई अपनी ओर से ली तो उस पर जो भी प्रोस कॉन्स होंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। उसके लिए बस आपने जैसे कंसल्टेंसी लेते हैं वैसे लीजिए, आप मेडिसिन भी बना के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको मतलब हमेशा साफ सुथरा रहना है, कोडिंग डिकोडिंग से बचना है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ओके, Dr. Lucifer is asking, can you suggest some good books for research methodology for BHMS? और बीएचएमएस आई थिंक कोई डॉक्टर साहा की आती है बुक, मुझे ख्याल से कोठारी जी की आती है, आपको ज्यादा पता होगा, है ना, इन पे मेरे रिसर्च पास 3 मेथोडोलॉजी का। बुक्स हैं, आई सेंड द पिक्चर। मेरे पास 3 हाँ बुक्स तो हैं, वो आई तो, सेंड द पिक्चर। हाँ लेकिन बीएचएमएस में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या करेंगे वो मुझे भी नहीं पता है। 2-4 आर्टिकल भी पढ़े ना तो बहुत है, बिकॉज मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी 1.5 साल पढ़ी है और मैंने कान पकड़ लिए। भाई जब वो इट इज बुक सो खोलोगे डिफिकल्ट। और जब अलग अलग जो है ना उसमें टर्म्स आते हैं ना, है ना, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि हम इसको बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, हार्डकोर सीरियसली। स्टैटिस्टिक्स और और वो सब भी उसमें चाहिए ना, जेड एसपीएसएस मेथड टेस्ट और ये और लगाते वो। हैं, जेड टेस्ट, टी सेट, टी टेस्ट। टीचर्स, कब हाँ। जेड टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट, उनका सिग्निफिकेंस क्या है हम्म रिसर्च में। तो हम्म बीएचएमएस वालों के लिए मुझे नहीं लगता, बट हाँ यस इन एमडी यू डेफिनेटली रिक्वायर दिस। हम्म देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, स्क्रीन करना हाँ, भी कोई नहीं, कोई मुश्किल हो रहा टेक है योर सर, टाइम, टेक योर टाइम। हमने बहुत अब जब जमा हुए हैं। ये सेशन जब लिया है तो हम बच्चों को चाहेंगे कि इनकी There's a जिज्ञासा को question शांत कीजिए। from Dr. Noori Ali. She's asking, sir, what are the best sources to review before preparing a synopsis? प्रिपेयरिंग ए सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस मीन फॉर द एमडी पर्पस, MD. तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना, Okay. वो, वो लंबा हो जैसे जाएगा ये। PubMed, आप, PubMed, Google Scholar और सोर्स बुक्स आती हैं उसमें। और उसमें आप वहां भी आपको मिल जाएगी बहुत काफी इंफॉर्मेशन। बहुत। और अगर किसी को ये जानना है ना PubMed में सर्च कैसे करते हैं तो मैं बता सकती हूँ, मैंने सीखा हुआ है। पहले पूछ लो उन PubMed में लोगों ऐसे से। सर्च करो। हाँ, पहले वो लोग बताएं कि कैसे करते हैं। सब चीज पक्का पक्का नहीं देना चाहिए ना। Oh my God. There's one controversial question. If you want to pass, you can pass. If you want to answer, you can answer. बोलिए बोलिए बोलिए। Dr. Prachi Pawar is asking what to do if student himself doesn't have faith in homeopathy. How can he practice something which he doesn't have belief in? तो उसने एडमिशन क्यों लिया जब उसको बिलीव नहीं था? कुछ तो सोच के लिया होगा ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो रास्ते बताए मैंने सारे। वे जिसको बिलीव नहीं है वही तो जा रहा है ना क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनने, वही जा रहा है हेल्थ मैनेजमेंट में, वही जा रहा है सब जगह। वो सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स मैंने बताए, जिसको बिलीव नहीं है या जो प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, आप अगर प्रैक्टिस मटेरियल हो तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मटेरियल नहीं हो तो आपके पास ये ऑप्शन है। Very true, sir. Okay, so I hope I have covered mostly all the questions. अगर किसी का और क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप इट। मेरे कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए हैं सर। हाँ मैंने देखा हाँ है बीएचएमएस के बाद कुछ लोग न्यूट्रिशन कर लेते हैं, हम्म, कुछ लोग इमरजेंसी मेडिसिन कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो
स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि उसका क्या फायदा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, ये उसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि उसकी डिमांड कितनी है और वो आपसे ही क्यों, आपको ही क्यों लेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ही क्यों हायर करेगा, वो है ना। जैसे एक एमबीबीएस करने के बाद भी है आपका सर्टिफिकेशन कोर्स, एक आपका बीएमएस करने के बाद बीएचएमएस बीयूएमएस जितनी हमारी शाखाएं हैं सबके करने के बाद है। अब इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर उसके उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने लोग मेरे को ये जानने के बाद लेंगे कि मैं बीएचएमएस किए हुए हूं। ज्यादातर जैसे आप महाराष्ट्र में कह रहे हो या इस एरिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो फिर भी आपको ले लें, तो फिर तो वही आप ब्रेड बटर के लिए कर रहे हो, मतलब वो तो आपको ब्रेड बटर वाला हिसाब किताब हो गया ना। अगर आपको सही रिकॉग्निशन मिल रही है उसको करते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। बट मेरे हिसाब से आपको, आप अगर इस चीज के लिए कर रहे हो कि आप एक्सक्लूसिव कोई हो इसमें, तो आप एक्सक्लूसिव नहीं हो, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन तो उनका उनका पूरा फोर्टे है। तो कोई आपसे इमरजेंसी मैनेजमेंट करवाने क्यों आएगा या आपको क्यों बुलाएगा। हाँ, जैसे अभी कोविड का सीन है, इसमें जैसे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि सर ये कोविड सीन में डॉक्टर्स को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में क्या एलोपैथिक डॉक्टर्स को जरूरत पड़ेगी आयुष डॉक्टर्स की, तो क्या वो ले सकते हैं। तो मैंने कहा ये उनके प्रेरोगेटिव है, वो लेना चाहेंगे तब लेंगे ना, वो हमें रिकॉग्निशन दे तब की बात है ना। पर बॉल तो उनके पाले में है, हम तो जाने को तैयार बैठे हुए हैं, हमने सारे कोर्स कर लिए, अब वो बुला ही नहीं रहा है, तो उस कोर्स करने का क्या फायदा हुआ। तो बात यह है कि हम, मतलब हमें ये समझ लेना होगा कि हम जो भी करें, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से भी आपकी डिमांड क्या है, जैसे कि उसके क्या रेगुलेशंस हैं, उसके क्या नॉर्म्स हैं, वहां सर्टिफाइड कोर्स वैलिड है कि नहीं, फिर आपका सीसीएच उसको वैलिडेट करता है कि नहीं करता है। आप कोई भी कोर्स कर लो, तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है ना। आप डिमांड है ही नहीं, आप कुछ भी कोर्स करके बैठ जाओ, फिर आप होम्योपैथी को तो करिया ही रहे हो, उसको भी करिया आओगे नहीं। और फिर यहाँ महाराष्ट्र में तो बीएचएमएस स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस इन आईसीयू सब कुछ। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एलोपैथी। बिल्कुल। तो अपने स्टेट के हिसाब से अकॉर्डिंगली देखिए, ऐसा है, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, कि जब हम एंट्रेंस देने गए तो वहां पे सिस्टम बना हुआ था कि एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस है ना, बीएमएस जो भी था, सीएसएम हम यूपी में देने गए। तो जब एमबीबीएस हम नहीं सेलेक्ट हो पाए तभी तो बीएचएमएस में आए। तो बीएचएमएस करने के बाद हम कोई सर्टिफिकेशन कोर्स के एमबीबीएस के एट पार कैसे हो सकते हैं। तो ये अपने को क्या ना, आप गिल्ट से भरे हुए हो, इसलिए इसको बार बार प्रूव करना चाह रहे हो कि आप अब बेटर हो गए। वो चीज नहीं है भैया, होम्योपैथ रहते हुए भी आप बेटर हो सकते हो, क्योंकि आपका आईक्यू इस लायक है कि आप बीएचएमएस करो, तो आप बीएचएमएस कर रहे हो सकता है उस लायक आईक्यू नहीं था, अब आपके मन में रह गया कि आपको एमबीबीएस बनना है, तो या तो भैया इसको छोड़ के दोबारा एमबीबीएस की तैयारी कर लो, उधर ही चले जाओ सीधे उस दिशा में। आप ये सोच के कि भाई 5 साल में पढ़ाई नहीं करूं डिग्री लेकर के और एक साल का सर्टिफिकेशन कोर्स करके चला जाऊं और मैं एमबीबीएस करने लगूं, प्रैक्टिस करने लगूं, वो चीज सही नहीं है। इसी से वो हमारे जो ब्रदर्स हैं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसी से वो चिढ़ते हैं, क्योंकि वो एक, मतलब ऐसे आदमी को क्यों लेंगे जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आया हुआ हो। क्या कमी है और हम में क्या कमी है, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस नहीं करते भाई। एक एमबीबीएस करने वाले को ये गिल्ट, बढ़ावा नहीं देते। एक एमबीबीएस करने वाले बच्चे को ये गिल्ट नहीं होता कि मैं आई सर्जन नहीं बन पाया या मैं सर्जरी, वो भी तो अंडर ग्रेजुएट है। जब उसको एक ब्रांच मिलती है, हर कोई तो सर्जन नहीं बन जाता ना भाई, किसी ब्रांच में ज्यादा पैसा है, किसी में कम पैसा है, ठीक है। कोई रेडियोलॉजी में जाता है, कोई जाता है एनेस्थेटिस्ट, तो एनेस्थेटिस्ट बन जाता है। तो प्रॉब्लम तो उनके यहाँ भी है, तो हर जगह प्रॉब्लम है, हर फील्ड में प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे उस चीज को लेते हो। मेरे हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन कोर्स वही करने चाहिए जिनकी वैलिडिटी हो, जिनकी जरूरत हो, जो यूजफुल हो। और वैसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स आप सीखने के लिए करना चाहते हो कि एज ए होम्योपैथ आपको आना चाहिए, तो आई विल सपोर्ट यू कि बिल्कुल आना चाहिए, आप करो। उसके लिए अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा। Okay. So there is a question from one of my most favorite page. Homeopedia is asking, is there any legal formality to start an online consultation as a homeopathic physician? If yes, तो बताइए। एक्चुअली क्या है, प्रोफेशनल कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स एटिकेट एक्ट 1982 रेगुलेशन जो 1982 का है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते अभी पिछले साल
एक क्लॉज जोड़ा गया है ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए, है ना। तो वो मेरे को क्लॉज याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप इस एक्ट को देखोगे जाकर के तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने इस पे एक बार ऑनलाइन कंसल्टेंसी में पूरा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वो शायद मेरे यूट्यूब या कहीं पे का लिंक मैं भेज दूंगा। तो उसमें वो पूरा दिया हुआ है कि सीसीएच इसको मॉनिटर कर रहा है। हालांकि सीसीएच अब रिजॉल्व होने वाला है, लेकिन फिर भी एनसीएच मॉनिटर करेगा। तो जो भी मॉनिटर कर रहा है वो 3 साल तक के लिए छूट दिए हुए है कि 3 साल तक आप अपना सेटअप बना लो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए, और उनके कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं कि उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हो। जैसे कि पेशेंट का नाम पूछना, पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी लेना, पेशेंट एग्री है इसका कंसेंट लेना, प्लस जो डिजीजेस इस पर्पस की नहीं है कि आप बिना एग्जामिनेशन किए नहीं दे सकते, उन डिजीजेज में आप दे सकते हो। पता लगा अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप पे मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्ज लग गया। तो आपको यह भी समझना होगा कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी की लिमिट क्या है और क्या उसका स्कोप है और कहां वो खत्म हो जाती है। तो कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर रहे हैं। यूपी में खुद ही, शायद मेरे को ऐप का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने खुद योजना चलाई थी अभी कोविड में, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने कंसल्टेंसी दी है, ऑनलाइन दे सकते हैं। ओके, वेरी करेक्ट। उसके लिए कुछ खास लेकिन रिक्वायरमेंट्स नहीं, जब 3 साल हो जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके सॉरी सर, बीएचएमएस के बाद एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमएससी एनाटॉमी कर सकते हैं, है ना। पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। मैं तो फॉरेंसिक का टीचर हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम आगे क्या कर सकते हैं, तो बताता हूँ पीजी डिप्लोमा कर सकते हो। बट यू कैन नॉट बी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, यू विल बी फॉरेंसिक साइंटिस्ट। आप टेस्ट ट्यूब उठा के घूमते फिरोगे, ब्लड टेस्ट करते फिरोगे, आप ये सोचो कि आप कुर्ता वो पहन के, जैकेट पहन के और वहां फील्ड में पहुंच जाओ, दैट इज डन बाय द फॉरेंसिक एक्सपर्ट। They must be MBBS and MD in forensic medicine. तो मतलब हाँ ना, टेम्पटेशन आता है ना देख के कि फॉरेंसिक, बट सबका अपना अपना रोल है। तो आप अगर टेम्पटेशन है तो आप करो, लेकिन आपका एक लिमिटेड रोल रहेगा उसमें। सर आप इतना रियल कैसे रह सकते हैं हमेशा? कोई फैंसी नहीं, कुछ ऐसा वाइवेशन नहीं, हमेशा एकदम रियल। इसीलिए क्योंकि भाई इसी चीज से मैं आगे बढ़ा हूँ, इसी से पढ़ा हूँ। जो मेरा कॉलेज था, अपना कॉलेज जो है, वहाँ रियल लोग ही रहते थे, तो वही वो जीन्स वहां से थोड़े बहुत आए हैं, थोड़ा सा घर से भी, परिवार से भी आया है, तो इसलिए। और एज ए टीचर हमारा दायित्व भी है। मतलब आई मस्ट से कि यू शुड बी दिस वे, द वे यू आर, क्योंकि आपके जैसे जेन्युइन, आपके जैसे रियल और एकदम जैसा दिख रहा है वैसा ही ऑब्वियस है। मतलब सर के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पर्सनली सर को कॉल करके कोई केस डिस्कस करेंगे तो सर कुछ और बोलेंगे, और सर अगर सोशल मीडिया पे या आर्टिकल में कोई केस बोलेंगे तो कुछ अलग बोलेंगे। तो सर बी द वे यू आर, बी जेन्युइन, बी रियल। बिल्कुल मेरे को तो ये मेरा बस एक ही कंसर्न है जो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे हमारे मिसगाइडेड हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं। तो मेरा यही कंसर्न था इसको करने का कि भाई परेशान मत हो और मिसगाइडेड मत रहो, मिसगाइडेड नहीं रहना चाहिए। मेरा ये बस, इसलिए मैं वही बात बता रहा हूं जो मैं फील करता हूं कि भाई बच्चों को एटलीस्ट ये पता लगे कि रियलिटी क्या है। वेरी करेक्ट, ओ माय गॉड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज वंडरफुल सेशन। इट इज ऑलवेज अ ब्लास्ट टू हैव यू, आई एम सो मच थ्रिल्ड। और थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये मई में होम्योपैथी हील्स की एनिवर्सरी पे हम प्लान कर रहे थे आपका, पर द वेरी अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ डॉक्टर पांडे, और मुझे भी पता है कि आप अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे बिकॉज यू आर नॉट आउट ऑफ दैट शॉक, ऑफ दैट ग्रीफ। माय हार्टफुल कॉन्डोलेंस, बिकॉज वो भी 2 बार हमारे साथ गेस्ट टॉक पर आए और आपने उन्हें होम्योपैथी हील्स से मिलवाया, एंड ही वाज वेरी जेन्युइन। लास्ट सिचुएशन में भी वो भी हमारे जैसे ही थे, वो भी बहुत ही बेसिक और बहुत ही साफ सुथरा बोलने वाले थे, बस थोड़ा प्यार से बोलते थे, मैं थोड़ा सा रूडली बोल जाता हूँ। वो 1 घंटे में इतना पढ़ा के जाते थे कि हफ्ता भर भी उनके लिखे हुए नोट्स पढ़ के और अप्लाई करने के लिए बहुत नॉलेजेबल थे। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है, टेक्निकली मैं एक चीज नहीं जानता हूँ,
जब ये सेशन खत्म होगा तो मैं इसको आईजीटीवी या डाउनलोड कैसे करूंगा? इसमें कोई ऑप्शन आता है जैसे आप बंद करोगे? मैं आपको लिंक भेज दूंगी, हाँ ये आप लिंक ठीक शेयर कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। लिंक ओके। डालूंगी मैं, आईजीटीवी आपको करूंगी आप सुनिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स। और इस बार आपको मैं बता दूं, इस बार ऑडियंस पहले के सभी सेशन से बहुत बहुत ज्यादा रही है। आई विल लेट यू नो द काउंट, कितने लोगों ने सुना थैंक्स टू आपको, देम। कितने लोगों ने सवाल पूछे। नहीं नहीं, थैंक्स टू देम या कि भाई उनकी और वजह से हम हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इन होम्योपैथी वी नीड टीचर्स लाइक यू, है ना। हम सब कुछ मेकअप करके नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा प्रेजेंट नहीं सकते। कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। या सो थैंक यू सो मच सर हाँ, फॉर और बीइंग एनी हियर। टाइम नेक्स्ट वीक एनी विल टाइम कम बैक। any queries required, you please ask me on my Instagram, Composer Mentis. I will solve your. Don't forget to follow his account Composer Menti, and he has a YouTube channel Shiv Zumbian if you want to see his Zumba and dance. And he's so good at dance as well. He has performed in so many ठीक programs, है। performance and infinals. ओके डियर। ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फिर अगले 20 एपिसोड के बाद आपको देखना चाहेंगे हम। श्योर श्योर। अभी तो देखो मैं कितने टॉपिक बता के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। अभी तो डिमांड आएगी, यूपीएससी की अभी तैयारी कैसे डिमांड करें, आएगी पीजी की तैयारी कैसे डेफिनेटली। करें, किसकी कैसे करें। बिल्कुल गाइड करेंगे, बिल्कुल आई करेंगे। ड्रॉप अ फीडबैक सेक्शन, आई ड्रॉप अ फीडबैक। आपने जो भी सीखा इस सेशन से, आपको जो भी फीडबैक है जरूर बताइए, सर तक जरूर पहुंचाइए। श्योर। थैंक यू सो मच। अगले संडे फिर से मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, होम्योपैथी से। बाय बाय।